dear students. Today we discuss another topic, that is micronutrients. In previous lecture we discussed macronutrients, and under that macronutrients we discuss carbohydrates, lipids and proteins. As you know that the macro means we need in large quantities, and micro means these are the nutrients we need in smaller quantities. So these micronutrients, they are nutrients required by organisms or required by human body throughout life in small quantities. As you know that these micronutrients, they are important for our body, and we require these nutrients in very small quantities, and these micronutrients, they are important for performing various physiological functions by our body. ठीक है. So these micronutrients, these are also important, ये भी हमारे बॉडी के लिए important है as macronutrients. एंड दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये हमारे बॉडी को फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में हेल्प करता है. जैसे हमारी बॉडी रेस्पिरेशन करती है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, इसमें आपको हेल्प करता है दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो अंडर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स द इंक्लूड्स vitamins and minerals which are organic compounds. ठीक है. Now what is this vitamins? ठीक है. सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं vitamins and minerals. पहले हम देखेंगे vitamins. What are vitamins? In ancient times, vitamins are called as vitamins. ठीक है. Vital amino acids. जो ancient period of था उस टाइम विटामिन्स नहीं कहते थे. एट दैट टाइम दे कॉल्ड एज vitamins. It means vital amino acids. But later they realized that all vitamins are not amino acids and all the amino acids are not vitamins. But जब रिसर्च हुई दिन ब दिन, फिर उन्होंने देखा कि नहीं, हम नहीं कह सकते हैं कि vitamins जो सारे हैं उन दे आर amino acids, उनमें amino acids है, या ऑल अमीनो एसिड्स को हम vitamins नहीं कहते. फिर एक न्यूट्रिशनिस्ट रिसर्चर आया जिसने इसको नाम दिया विटामिन, जिसका नाम था H.J. Funk. It means H.J. Funk concludes and proved that vitamins, they are not amino acids and all the amino acids are not vitamins. Then he gave the name vitamins. And these vitamins, they play significant role. इनका क्या function है हमारी body में? They help in body growth. They protect our body from various deficiency diseases and regulation of metabolic functions. It means जो हमारी body में nutrients की metabolism हो जाती है, उसमें vitamins आपका role play करते हैं. And these vitamins, they protect your body from various deficiency diseases. ठीक है. बिकॉज वाइटामिन्स में बहुत सारे वाइटामिन्स आ जाते हैं. Many of them can't be synthesized in the body, so must be attained from the diet. So vitamins में ऐसे कुछ vitamins हैं जो आपकी body synthesize नहीं करती है. That is why you need them from the diet. Vitamins are organic compounds which enhance the metabolism of carbohydrate, proteins and fats. ये जो ये vitamins है ये organic compounds है. ठीक है. एंड ये important है हमारे बॉडी के लिए बिकॉज ये हमें हेल्प करते हैं जब इनकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है हमारी बॉडी में. ठीक है. Without vitamins, breakdown of food is impossible. ठीक है. Because when you ingest anything, then inside our mouth, inside our body, the food, it breaks down into smaller amount quantity. ठीक है. ये डिवाइड हो जाता है स्मॉलर क्वांटिटी में, इसके मेटाबॉलिज्म हो जाती है. आफ्टर मेटाबॉलिज्म उसमें न्यूट्रिएंट्स निकल आ जाते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन से, एंड वहां से ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में. सो अगर आपके पास आपके बॉडी में या आपके डाइट में विटामिन्स नहीं होंगे, सो ब्रेक डाउन ऑफ फैट इज इम्पॉसिबल. ठीक है. दैट इज व्हाई vitamins are also important for our body. Hope you understand this.
Now why vitamins are good for us? ठीक है, because greater need due to worse environment, improve immunity, slower aging, prevent illness. ठीक है, so these are the reasons for why vitamin is important. Now we classify the vitamins into two groups. One is water soluble vitamin and another one is the fat soluble vitamin. Fat soluble vitamins में आ जाता है A, D, E and K and water soluble में आ जाते हैं सारे B vitamins या B complex. एक family है B vitamins की जिसमें B1, B2, B3, B6, B12 आ जाता है. विटामिन C और इसमें आ जाता है. ठीक है, और इसमें फोलेट आ जाता है, बायोटिन आ जाता है, जो भी बाकी विटामिन्स है वो अंडर वाटर सॉल्युबल. इट मींस ये सारे विटामिन्स इजीली डिसॉल्व होते हैं वाटर में एंड फैट सॉल्युबल दीज आर नॉट डिसॉल्व्ड इन द वाटर एंड दीज विटामिन ए डी ई एंड के ये जो ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स है ये हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं इन द लिवर. अगर आप फॉर एग्जांपल विटामिन ए लेंगे तो जितना आपका डेली कंजप्शन होगा मे बी उसका 60 या 70% आपको एक्सपेंडिचर हो जाएगा. So the remaining 20% or 30% will store in your body in the liver. ठीक है. Then if another day, if on the another day the vitamin A is not present in your meal, then जो ये stored vitamin A है आपके body में उस time पे वो utilize हो जाता है. ठीक है. Now water soluble vitamins, vitamin C इसको आप साइट्रिक या एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं. B1 थायमीन, B2 को हम राइबोफ्लेविन, B3 को नाइसिन, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पायरोडॉक्सिन, B9 को फोलिक एसिड, B12 को कोबाल एमाइन, कोलिन एंड बायोटिन. सो ये वाटर सॉल्युबल है. फैट सॉल्युबल में आ जाता है A, D, E एंड K. ठीक है. विटामिन ए फैट सॉल्युबल जिसको आप रेटिनॉल भी कहते हैं. विटामिन डी D2 अर्गो कैल्सिफ्रॉल और D3 कोलिकैल्सिफ्रॉल. बिकॉज विटामिन ए जो है ये एज सच फूड में विटामिन ए में प्रेजेंट नहीं होता है, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड एंड बीटा कैरोटीन आप ये आगे देखेंगे. विटामिन डी भी इस टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. विटामिन ई जिसको आप टोकोफेरॉल कहते हैं एंड विटामिन ए जिसको आप क्विनोन्स कहते हैं. ठीक है. So these are the fat soluble vitamins. It means they are not dissolved in the water, they are insoluble in water and these four vitamins are stored in our body in the liver. Now first fat soluble vitamin that we discuss here is vitamin A. In early 19th century by E.M.C. कोलम. सो विटामिन ए का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये 19th सेंचुरी में इसका कॉन्सेप्ट आया. ये दिखाई कि विटामिन एक न्यूट्रिएंट है जो इन्होंने पाया गया फूड्स में. तो ये एमसी कोलम था जिसने विटामिन ए का कॉन्सेप्ट दिया. ये फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन है. ठीक है. इट इज फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ प्रिकर्सर्स. सो विटामिन ए आपको नेचर में in the form of vitamin A नहीं मिलेगा, but we get vitamin A in different precursors like retinol, retinal, retinoic acid. ठीक है. ये एनिमल फूड्स में है. विटामिन ए प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड में वहां पे वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन. ठीक है. या कैरोटीनाइड जैसे येलो, ऑरेंज और रेड कलर पिगमेंट जो है तो डिफरेंट कलर कैरोटीनाइड्स होते हैं. तो प्लांट सोर्स ऑफ फूड से जो आपको विटामिन ए मिल जाता है वहां पे यू गेट विटामिन ए फ्रॉम प्लांट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन एंड फ्रॉम एनिमल सोर्स you get vitamin A in the form of retinol, retinal और retinoic acid. ठीक है. सो आपको विटामिन ए नेचर में इन द फॉर्म ऑफ विटामिन ए नहीं मिल जाएगा, एनिमल सोर्स में आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा. फिर ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू विटामिन ए. होप यू अंडरस्टैंड दिस. विटामिन ए इट इज soluble in fat. ठीक है. because it is fat soluble vitamin, insoluble in water, stable to heat, acid, alkalis, easily oxidized and rapidly destroyed by ultraviolet rays. ठीक है. 95% of vitamin A stores in the liver. ठीक है. सो मैंने आपको पहले ही कहा कि विटामिन ए ये हमारी बॉडी में स्टोर रहता है
और इसकी जो कैपेबिलिटी है 95% रह सकता है हमारे लिवर में विटामिन ए स्टोर। फिर जब हम जैसे स्टारवेशन पे होते हैं या कभी आपको विटामिन ए फूड्स अवेलेबल नहीं होते, एट दैट टाइम ये हमारे लिवर में ये स्टोर होता है विटामिन ए, उस टाइम पे ये स्टोर जो विटामिन ए है ये यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है। Now, what are the functions of vitamin A in your body? First is for better vision, especially in dim light. ठीक है, for eyesight के लिए ये बहुत ही important है। Good healthy moist and glossy skin के लिए important है। Normal growth and development, ठीक है। It provides resistance to infection by keeping mucous membrane in a healthy condition and act as a barrier to infection. It means vitamin A भी fight करता है आपको against infection या foreign substance. ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को एनहांस के लिए विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग बोनी स्ट्रक्चर एंड टीथ, ठीक है। मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हेल्प्स द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज कॉर्टिजोल इन अ नॉर्मल वे, helps normal function of thyroid gland, helps to manufacture red blood cells. ठीक है, so these are the functions of vitamin A in our body. That is why vitamin A is very important. If vitamin A is not present in your diet, so इन सब पे इफेक्ट होगा। आपका स्किन जो है वो हेल्दी नहीं रहेगा, वो उसमें जो लस्टर या मॉइस्चनेस है या उसका जो ग्लोइंग स्किन है वो सारा इफेक्ट होगा। आई साइट आपकी कम हो जाएगी, इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी। ठीक है, एंड ऑल दीज फंक्शंस। These are the food sources in which vitamin A is present: green leafy vegetables, yellow, orange, and red vegetables and fruits, egg yolk, milk, cheese, butter, pure ghee, liver, fish liver oil, and organ meat. ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। 600 माइक्रोग्राम अगर आप रेटिनॉल, इट मींस एनिमल से सोर्स ऑफ फूड से आप विटामिन ए लेंगे तो आपकी इतनी रिक्वायरमेंट है 600 माइक्रोग्राम। अगर आप बीटा कैरोटीन प्लांट सोर्स से सिर्फ आप अपना विटामिन ए की नीड फुलफिल करते तो आपको 2400 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन मिलना चाहिए। ठीक है। Now, if there is deficiency of this vitamin in your diet, it means जब आपके डाइट में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो इससे क्या डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है। ठीक है, या आप डेफिशिएंसी को कहते हैं हाइपोविटामिनोसिस। इट मींस व्हेन देयर इज लेस विटामिन ए इन योर डाइट। फर्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस या जिसको आप कहते हैं निक्टेलोपिया। ठीक है, आंखों की जो रोशनी है वो कम हो जाती है। ठीक है, वाइट और स्पॉट्स, इसमें वाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं। जो हमारी कंजक्टिवा जो इसमें ब्लैक पोर्शन है या वाइट पोर्शन है वो रेड हो जाता है। ठीक है, अराउंड जो आई है इसमें वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, एंड फाइनली जो है जो टोटली वो ब्लाइंड हो जाता है अगर आपने राइट टाइम पे उसको प्रिवेंट नहीं किया। ठीक है, by taking the vitamin A rich sources of food. If there is a deficiency of vitamin in your diet, what will happen to your skin? Skin become dry, scaly, rough and pimples. As you know that our skin उसका जो upper layer है वो epithelial layer जिसको हम कहते हैं। ठीक है, चेंजेस इन द आई, मैंने आपको कहा टीयर्स, आई बॉल्स ड्राई हो जाती है, लस्टरलेस, जो ऐसे आपको ऐसे नॉर्मल आई होगी ये वाटरी होती है वो सब नहीं होता इसमें। बाइट और स्पॉट्स, ये व्हाइट व्हाइट वो डॉट्स पड़ जाते हैं। फोटोफोबिया, ज़ेरोफ्थैलेमिया, ज़ेरोफ्थैलेमिया जो सेल्स होती है वो इसमें डेड हो जाती है। ठीक है, ड्राइनेस हो जाती है, कैरोटोमेलेशिया और परमानेंट, फिर फाइनली उसको परमानेंट वो अंधा हो जाता है। बोन डेवलपमेंट इम्पेयर हो जाती है बच्चों में अगर विटामिन ए की कमी होगी। स्टेंटेड एंड फेलियर इन चिल्ड्रन, इट मींस उनकी जो बोन्स है वो बैंड स्टेंट हो गई, वो एक ही जैसे अगर 10 सेंटीमीटर उसकी बोन की ग्रोथ होगी तो वहीं पे रुक जाएगी, उसके आगे वो बोन उसकी डेवलप नहीं हो जाती है। इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट ऑफ ए चिल्ड्रन, डिप्रेशन ऑफ इम्यून रिएक्शन। ठीक है, now if there is excess of vitamin A or hypervitaminosis, so
डिफिशिएंसी भी हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए एंड एक्सेस भी है ऑफ विटामिन ए हमारे हेल्थ के लिए, या आप कह सकते हैं हाइपर विटामिनोसिस। इफ यू टेक विटामिन ए इन एक्सेस व्हाट विल हैपन, एक्सेस इज स्टोर्ड इन द लिवर विच इज टॉक्सिक, अगर ज्यादा एक्सेस रहा, ठीक है। सिम्टम्स आर, इसमें क्या क्या सिम्टम्स रह सकते हैं अगर विटामिन ए आपने एक्सेस में लिया। नौशिया, इट मीन्स कि आपको वो उल्टियाँ फील हो रही है तो वॉमिटिंग नहीं होती है, ठीक है, उसको हम नौशिया कहते हैं। एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ हेयर, थिकनिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड जॉइंट पेन, लॉस ऑफ एचबी, हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है, एंड पोटेशियम बाय आरबीसी, रेड ब्लड सेल से पोटेशियम कम हो जा रहा है। सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल गर्ल्स में होती है वो बंद हो जाता है। स्लोवुड क्लॉटिंग टाइम, जो ब्लीडिंग होती है, जैसे कभी इंजरी होती है या फिर जब खून आ जाता है तो वो क्लॉट हो जाता है, कोगुलेशन हो जाती है, तो जिसका जितना जल्दी होगा वो जल्दी हील अप हो जाता है, उसमें उतना ब्लड लॉस नहीं होता है, इट मीन्स उसमें क्लॉटिंग टाइम अच्छा है। लेकिन विटामिन ए अगर आपने एक्सेस में लिया तो स्लोवुड क्लॉटिंग टाइम हो जाता है। स्किन बिकम्स ड्राई, इचिंग, रैशेस, क्रैकिंग, ब्लीडिंग ऑफ लिप्स, नोज ब्लीड, ब्रिटल नेल्स, इट मीन्स नेल जो है वो ब्रिटल हो जाते हैं, वो टूटने लगते हैं, ठीक है। स्प्लीन, ठीक है, वो दिन ब दिन एनलार्ज होता है। Now the next vitamin, fat soluble vitamin, is vitamin D. So it is first isolated in 1930, and this vitamin D, we can call it as also as anti-rachitic vitamin. Okay, so its another name is anti-rachitic vitamin. And this vitamin D, as it is very important for calcium, phosphorus, iron and magnesium absorption. So if there is deficiency of this vitamin D in your diet, the absorption will impair of these nutrients in your body. As vitamin A is also present in different forms, same is the case with the vitamin D. It is also present in precursor form in diet in two forms, especially vitamin D2. We call the vitamin D2 as ergosterol or calciferol, and in the form of vitamin D3, that is activated 7 dehydrocholesterol or cholecalciferol. So as such vitamin D जो है, it is not present in the diet, it will be present in two forms, that is vitamin D2 and vitamin D3. Then with the help of sunlight, this vitamin D2 and D3 will get activated on our skin in vitamin D. And this vitamin D, it is synthesized in our body, ठीक है। So if there is deficiency of vitamin D in your diet, it will not harm to your body because it is synthesized in our body, and we get this vitamin D from sunlight also. That is why vitamin D from food is not important as compared to other nutrients. And vitamin D, it is also important for fat absorption. It means जो absorption of fat है, it will get impaired if there is a deficiency of vitamin D. So for the better absorption of fat, you need vitamin D. ठीक है? Now what are its functions? It is important for normal teeth and bone formation with the help of phosphorus and calcium. It means जो vitamin D है, it is important for bone and teeth formation, but with the help of phosphorus and calcium. It is important for regulation of calcium and phosphorus in blood, and it helps in the absorption of these minerals and parathyroid and thyroid gland hormones. ठीक है? So these are the food sources in which vitamin D is present. First is a natural source, that is sunlight, fish liver oil, fortified milk. Fortified milk means milk which is enriched with vitamin D. As such, milk is deficient in vitamin D. That is why we fortify the milk with vitamin D.
Vanaspati, it is a form of ghee and it is very cheap. It is rich in the vitamin D, margarine, same, butter, milk, fish, cheese and ghee. ठीक है? So daily requirement of this vitamin is 200 international unit. IU is unit of the vitamin D. Now the deficiency of this vitamin in your diet. It leads to lowered absorption of calcium, reduced bone mineralization, bones bend in deformities. ठीक है? So if there is deficiency of this vitamin in your diet, especially जो affect हो जाते हैं आपके body में, that are bones. ठीक है? एंड जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम है वो भी इम्पेयर हो जाता है, वो भी इफेक्ट हो जाता है इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन इन योर डाइट. एंड जो इससे डिजीज होती है, डेफिशिएंसी डिजीज होती है विटामिन डी से, दैट इज रिकेट्स इन चिल्ड्रन बट इन अडल्ट हम उसको कहते हैं ऑस्टोमेलेशिया. रिकेट्स में क्या हो जाता है, जो बोन्स होती है वो बहुत वीक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, और जो उसकी बोन्स ऑफ लेग्स होती है दे गेट बेंड. ठीक है? सेम इज द केस विद ऑस्टोमेलेशिया, बोन्स बिकम फ्रेजाइल. ठीक है? पर्सन को फील होता है कि मेरी बोन जो है ये अभी ब्रेक हो जाएंगी. एंड इन ऑस्टोमेलेशिया द वेट हाइट ऑफ द पेशेंट वो भी स्टंट हो जाती है. ठीक है? एंड जो बोन्स होती है वो ब्रिटल और बेंड हो जाती है. ठीक है? एंड अनदर इंक्रीज्ड कैल्शियम एक्सक्रीशन इन स्टूल्स एंड डिक्रीज्ड इन यूरिन. जो कैल्शियम इन नॉर्मल फंक्शन में तो ये एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से. सो वो क्या होता है कि स्टूल्स में ज्यादा एक्सक्रीट हो जाता है एज कम्पेयर टू यूरिन. एंड हाई सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन एबनॉर्मल हो जाती है. ठीक है? So what is the hypervitaminosis? If you take this vitamin D in excess, what will happen to your body? So if you take large doses of vitamin D, it will be toxic for your body. ठीक है? If you use excessive use of fortified foods, that will lead to loss of appetite. आपकी भूख जो है वो कम भी मुड़ जाती है, कम हो जाती है. Vomiting, you feel vomiting, diarrhea, ग्रोथ फेलियर, आपकी जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट हो जाती है. एज पर जो नॉर्मल ग्रोथ चार्ट है वो इफेक्ट हो जाता है. ठीक है? एज पर एज जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती है. Calcification of soft tissues and kidney stones, increased calcium and phosphorus concentration in your body. So जो एक्सेस में आप विटामिन डी ले रहे हैं उससे भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट होता है. So you have to maintain the balance of vitamin D in your diet. So this was all about the vitamin A and vitamin D, which are fat soluble vitamins and which comes under the micronutrient group. It means vitamin A and vitamin D both are very important. So if there is deficiency, they will affect upon your body, and if you take these vitamins in excess amount, they become toxic for your body. So the better option is you have to maintain the balance between consumption and expenditure of any type of the nutrient. So this was all about the today's topic. Inshallah tomorrow we discuss another vitamins. Thank you.